Hello everyone. Today we'll discuss about our new topic of human anatomy. Okay, and the topic is terms of movement. Let's note down the heading: terms of movement. कुछ नहीं, ये बेसिक इंट्रो होता है ह्यूमन एनाटॉमी में कि जो हम बॉडी में मूवमेंट्स होती हैं उनको एक पर्टिकुलर टर्म से डिनोट करते हैं। तो वो टर्म क्या क्या है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट इम्पोर्टेंट, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर बेसिक नॉलेज इट इज़. सो जस्ट वी स्टार्ट. द फर्स्ट टर्म इज फ्लेक्शन. फ्लेक्शन मतलब फ्लेक्स करना, मतलब कि उसको मोड़ना उसी चीज़ को, ठीक है. एंड द डेफिनेशन इज बेंडिंग द जॉइंट, bending a joint and decreasing the angle between two body parts. ओके, फ्लेक्शन क्या होता है कि किसी जॉइंट को मोड़ना और दो पार्ट्स के बीच में एक एंगल को कम करना, ठीक है. तो सिंपल वे में एक स्ट्रेट आर्म है हमारी, ठीक है. स्ट्रेट आर्म को हमने मोड़ दिया, ठीक है. जस्ट एग्जांपल, यहाँ से स्टार्ट होकर के ये हमारी स्ट्रेट आर्म थी और हमने इसको यहाँ पे मोड़ दिया, ठीक है. तो ये क्या हो गया? फ्लेक्शन. और देयर इज एन एग्जांपल दैट स्ट्रेट आर्म इनटू बेंट आर्म. मेरा पेन चला गया. स्ट्रेट आर्म to bent arm. As I saw you that this is my arm and this is straight and then I bent it. Okay, this is what we call flexion. And now we will go on our second term, and the term is extension. Flexion का दूसरा क्या हो जाएगा? Extension means opposite of the flexion, ठीक है. What about the definition? The definition is straight a joint and increase the angle, ठीक है. Flexion में क्या करा कि bend a joint and decrease the angle. In extension we did straight a joint sorry for the handwriting, straight a joint and increase the angle. Increase the एंगल मीन्स जैसे अभी हमारा स्ट्रेट आर्म था, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक स्ट्रेट आर्म था, हाँ, फिर हमने इसको बेंड कर दिया, लेकिन वापस में क्या करना है, इसको वापस से खोल देंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सटेंशन. ओके, फॉर एन एग्जांपल, बेंट आर्म टू स्ट्रेट आर्म. गॉट इट? बेंट आर्म टू straight arm. Okay, then we'll go on our third term of movement. It's about our third term of movement and it is hyperextension. What we call hyperextension. सो दैट इट मीन्स कि हाइपर एक्सटेंशन होता क्या है? हाइपर मतलब किसी चीज़ के नॉर्मल ना रख के हम उस चीज़ को ओवर कर रहे हैं उस चीज़ का, ठीक है. और एक्सटेंशन मीन्स कि हम किसी जॉइंट का जो एंगल एंगल जो इंक्रीज़ कर रहे थे हम उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करना हमें, ठीक है. लाइक दैट कि ये कोई जॉइंट है, ठीक है. दिस इज़ एन जॉइंट और फिर हमने इसको यहाँ पे कर दिया एक्सटेंशन और फिर हम इसको वापस से हाइपर कर रहे हैं. दिस इज़ व्हाट वी कॉल हाइपर एक्सटेंशन. गॉट इट? Okay, then we will note down the definition of hyperextension is extension beyond the normal anatomical position. Extension beyond the normal anatomical position. Okay. Then there is an example for this. Normal extension to excess extension.
normal extension to axis extension. Got it? Means we did more than the normal. This is what we call hyper extension. So we did the three terms of movement. Then the first is flexion, which means straight arm converted into the bent arm. Got it? Then the second one is extension, which means bent arm to straight arm. Okay, then our third term is hyper extension, which means the extension beyond the normal position. Got it? Okay. Our next term is fourth, abduction. Okay, abduction means movement away from the midline of the body. Movement away from the midline of the body. So just suppose that this is an individual and this is the midline, and an abduction, movement away from the midline. So the movement of hands is away from the midline. ठीक है, ये इंडिविजुअल था, ये मिडलाइन थी, और जो हैंड्स थे इसके वो क्या हो गए, अवे फ्रॉम द मिडलाइन. दिस इज व्हाट वी कॉल एबडक्शन. ओके, सो द नेक्स्ट टर्म इज एडक्शन. द फिफ्थ टर्म इज adduction. Adduction means movement toward the midline of the body, means the opposite of the abduction. Abduction means away from the midline of the body. Adduction means near the midline. Movement toward the midline of the body, which means this is an individual and this is the midline. In this we just put the hands toward the midline, means near the midline. This is what we call adduction. Or in abduction, away from the midline means away from the line. In adduction, near or toward to the midline of the body. So the next term is rotation. Rotation. Rotation means turning a body part around it on axis. Means कि किसी भी body part को move करना है उसी के axis पे. ठीक है? Turning a body part on its on axis. मतलब खुद के ही एक्सिस पे उस बॉडी पार्ट को मूव करना. फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल में लिख सकते हैं नेक हो गया, क्योंकि नेक का जो क्या है खुद का एक एक्सिस है और उसी पे राइट में लेफ्ट में मूव कर पाती है, अप एंड डाउन मूव कर पाती है. ठीक है. या फिर इसमें एक एग्जांपल हो सकता है हमारे पास में हमारी रिस्ट. रिस्ट क्या होता है, ये हमारी रिस्ट है और फिर यहीं पे हमारा हैंड जो है वो प्रॉपर मूव कर पा रहा है, मतलब उसी एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो उससे भी हम क्या बोलेंगे, रोटेशन. ठीक है. Our next term is circumduction. The seventh one, the circumduction. Circumduction means circular movement combining flexion, extension, abduction and adduction. मतलब इसमें सबका combination होता है. That circular movement combining flexion, extension, abduction
एंड एडक्शन मीन्स कि इसमें हम उस बॉडी पार्ट को उसके एक्सिस पे मूव नहीं करके बॉडी से दूर ले जाके फिर हम उसको मूव कर रहे हैं, मतलब उसकी एक्सिस पे मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये होता है सर्कमडक्शन. सो द नेक्स्ट टर्म इज सुपाइनेशन. द एट्थ वन इज सुपाइनेशन. सुपाइनेशन में क्या होता है? सुपाइन एक वर्ड है, नॉर्मल पोजीशन जो होती है ह्यूमन बॉडी में, प्रीवियस वीडियो में भी था कि सुपाइन जो एक पोजीशन है उसमें होता है कि इंसान जो है बिल्कुल स्ट्रेट लेटा हुआ है, फेस अपवर्ड होता है, बैक जो होती है उसकी डाउनवर्ड होती है, ठीक है. तो सुपाइनेशन हम उससे रिलेट कर सकते हैं. इसमें सुपाइनेशन क्या होता है कि सीधा रखना किसी चीज़ को, ठीक है, सीधा रखना, बिल्कुल सीधा. और इसमें लिखा क्या हुआ है कि लाइक टर्निंग द पाम अपवर्ड, turning the palm upward means ये backward, ये upward, मतलब इसको सीधा रखना, इसे हम बोलते हैं सुपाइनेशन, ठीक है. एंड द नेक्स्ट टर्म इज प्रोनेशन. PRONATION, प्रोनेशन. प्रोनेशन मीन्स टर्निंग द पाम डाउनवर्ड. प्रोनेशन हम एक जो नॉर्मल पोजीशन होती है, एनाटॉमिकल पोजीशन, उससे रिलेट कर सकते हैं. सुपाइन मीन्स सीधा, प्रोनेशन मतलब प्रॉन मतलब उल्टा लेटना, ठीक है, मीन्स द फेस इज डाउनवर्ड एंड द बैक इज अपवर्ड. तो इसमें वही सेम चीज़ रिपीट होनी है. प्रोनेशन में क्या होता है कि टर्निंग द पाम डाउनवर्ड. प्रोनेशन मीन्स turning the palm downward, means the putting our arm like that. Okay, so the next term is dorsiflexion. Dorsiflexion, ठीक है. Bending the foot upward toward the shin means कि note down that bending the foot upward toward the shin means ये suppose that this is a क्या फुट है हमारा, ठीक है. अब इसमें डोर्सिफ्लेक्शन में क्या होता है, जो भी फिंगर्स होती हैं पैर की, जो भी उंगलियां होती हैं, वो ऐसा ऊपर साइड मूव कर जाती हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन. इस वाले टेक्सचर में कि ये नॉर्मल हो गया, अभी फिंगर जो पैरों की उंगलियां हैं वो ऐसे मूव कर गई, ऊपर हमने उठा लिया उनको, तो क्या हो गया, डोर्सिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है. देयर इज एन डायग्राम. दिस इज अ नॉर्मल फुट, ये नॉर्मल है, ठीक है. इसकी ये जो फिंगर्स थी ये यहाँ पे थी, बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इसके अंदर हम फिंगर्स को ऐसा यूँ मूव कर देते हैं, ठीक है, फिंगर्स को हम ऊपर साइड ले जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल डोर्सिफ्लेक्शन, ठीक है. सो द नेक्स्ट वन इज प्लैंटर फ्लेक्शन, द 11th वन, PLANTAR, plantar flexion. इसमें क्या होता है, लाइक पॉइंटिंग द फुट डाउनवर्ड. क्या होता है इसमें, पॉइंटिंग द फुट डाउनवर्ड मीन्स डॉर्सी में क्या हो रहा था, ये पैर था नॉर्मल में और फिर जो पैरों की उंगलियां थी वो ऐसे हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसे अपोजिट हो जाएगा. ये नॉर्मल था, नॉर्मल डोर्सिफ्लेक्शन, नॉर्मल, ये फिंगर्स अंदर के नीचे मूव कर जाना, हम क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है. ये नॉर्मल, ये पैर की उंगलियां नीचे साइड कर दी हमने, तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है. एंड आवर नेक्स्ट टर्म इज इन्वर्जन. 12th वन इज इन्वर्जन. इन्वर्जन क्या होता है, टर्निंग द सोल ऑफ द फुट इनवर्ड. जो पैर की सोल है उसको अंदर की साइड मूव करना, ठीक है, टर्निंग द सोल ऑफ फुट इनवर्ड, ठीक है. इसमें होता क्या है बेसिकली कि
गेस दे, ये हमारे पैर है, ठीक है। इसमें हम जो है सोल्स को अंदर साइड ला रहे हैं, ये वाली सोल्स कैसे जाएंगी अंदर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो होगा उधर उठ जाएगा, ये नॉर्मल और ये ऐसे है, ठीक है। ये वाला नॉर्मल लेग हो गया हमारे, नॉर्मल पैर हो गए, फीट हो गई हमारी, और ये हो गया क्या, इन्वर्जन, ठीक है, टर्निंग द सोल्स फुट इनवर्ड। ये सोल्स थी अंदर के साइड में आ गई, ये वाला पोर्शन उठ गया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज एवर्जन। और 13th टर्म इज एवर्जन, अपोजिट ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। टर्निंग द सोल्स ऑफ फुट आउटवर्ड, टर्निंग द सोल्स ऑफ फुट आउटवर्ड, पैर की सोल्स को हम बाहर की साइड मूव कर रहे होते, ठीक है। एग्जाम्पल, दिस इज नॉर्मल फीट, और इसके अंदर हम ये वाला पोर्शन जो होता है हमारे पैर का, इसको ऊपर की साइड लिफ्ट करते हैं, ठीक है, लाइक ए नॉर्मल वन, और फिर हमने इसको यूँ लिफ्ट कर दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एवर्जन। सो द नेक्स्ट वन इज एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स रेजिंग अ बॉडी पार्ट, रेजिंग ए बॉडी पार्ट। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया, श्रगिंग शोल्डर्स, एग्जाम्पल में श्रगिंग शोल्डर, ठीक है। जैसे ये हेड है, ठीक है, और ये शोल्डर्स हैं। अभी ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसे हम नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है। अगर इसके एंगल के बीच में डेविएशन आए, यहाँ पे ये जो डेविएशन आता है, ये डेविएशन आए, इसे हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन। मतलब हिंदी में बोले तो श्रगलिंग शोल्डर मीन्स कंधे ऊपर करना, ठीक है, लाइक रेजिंग अ बॉडी पार्ट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास में वो है डिप्रेशन। 15th इज डिप्रेशन, ठीक है। डिप्रेशन मीन्स lowering a body part, lowering a body part। जैसे एलिवेशन में क्या करा हमने कि इस बॉडी पार्ट को रेज कर दिया, डिप्रेशन में क्या करा हमने कि जो बॉडी पार्ट था उसको लो कर दिया। मीन्स कि जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल से एलिवेट करा था इसको, ये था एलिवेशन। डिप्रेशन में क्या हो जाएगा, एलिवेशन से वापस नॉर्मल लेके आना है इसको, ठीक है।